Hi everyone, this is Aryan Mishra, and welcome to the seventh lecture of Spark Astronomy and Early Innovation Missions Getting Up to the Sky. Today is also the last lecture of this series, and today I'm not going to have any PPT because I didn't made one PPT. And secondly, today I'm going to speak about myself and Spark Astronomy and a little bit about my journey. We will also learn about how to become an astronomer, what it takes to become an astronomer, and other things, right? So when I started astronomy when I was 11, I started when I was 10. Right now I'm 20. So I'm telling you at least 10 years backstory, right? So this story goes back to 2010. You know, so let's do one thing, right? So whenever you do something, so just raise your hand, open your camera, just raise your hand, right? Like this. Don't raise your hand in the chat box. Okay. Whenever you open a fridge, okay, does your parents stop you to open the fridge? Like they say that क्यों क्यों खोल रहे हो, क्या जरूरत है, right? जिया के पेरेंट्स कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, खोल लो, तोड़ दो, कोई बात. Is there anyone? किसी किसी के पेरेंट्स नहीं रोकते कि फ्रिज मत खोलो and कुछ मत करो, right? Like whenever you do something, your parents do your parents stop you? Don't do that, right? काफी काफी अच्छे बच्चे भी हैं यहाँ पे जिनके पेरेंट्स रोकते नहीं. That's good. That's good. पता है मेरे भी पेरेंट्स रोकते थे, ठीक है. मेरे भी पेरेंट्स बोलते थे कि क्यों फ्रिज खोल रहे हो, व्हाई आर यू ओपनिंग रेफ्रिजरेटर एंड ऑल दिस थिंग्स. तो अगला मेरा सवाल पता है क्या पूछता था अपने पेरेंट्स से? व्हाई, क्यों, व्हाई, राइट? आप में से भी अपने पेरेंट्स से आप पूछते होगे कि अगर आपके पेरेंट्स मना करते हैं, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, कोई भी मना करता है, तो आप सबसे पहले छूटता यही सवाल पूछते हो, क्यों, व्हाई. वाई एक ऐसा वर्ड है, बहुत छोटा सा वर्ड है, WHY, 3 लेटर्स का वर्ड है, WHY, राइट? बट इस वाई ने पूरी दुनिया बदल दी है. कैसे दुनिया बदल दी है? रामन ने सोचा कि स्काई ब्लू क्यों है. आइंस्टाइन ने सोचा, राइट, आइंस्टाइन ने सोचा कि स्टार्स कोलैप्स होने के बाद क्या होता है. गैलीलियो ने सोचा कि वीनस के पास फेजेस क्यों हैं, राइट. एडविन हबल ने सोचा कि गैलेक्सीज मूव क्यों कर रही हैं, राइट. पर्सिवल लोल ने ये सोचा कि मार्स पे पानी हो सकता है. तो उन्होंने अपने आप से सवाल पूछा व्हाई. जब आप ये व्हाई आजकल के, मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, ठीक है. एक दिन क्या हुआ, एक फादर और एक बेटा साथ में बैठे हुए थे, ठीक है. A dad and a father was sitting together and suddenly it was raining. Okay, बारिश हो रही थी. वो दोनों, बेटा कुछ कर रहा था, he was using phone, let's take phone only because वही करते हैं. And father was reading the newspaper, right. Suddenly विंडो पे एक स्पैरो बैठ गई, ठीक है. डैड ने पूछा बेटे से कि वो क्या है. तो डैड ने बोला, बेटे ने बोला, ये तो स्पैरो है, इट्स सो सिंपल, यू डोंट नो दिस, ठीक है. तो स्पैरो उड़ गई. The sparrow went away and the sparrow then came again and the father asked again, what is that? So the parents, the kid said that it's a sparrow, right. Then again the parents, the again it went away and again they come. ये ऐसा ऐसा 5 8 6 7 बार हो गया. अब जब ये 7th टाइम हुआ ना, the kid got frightened. He was like, why are you asking me the same question? He got angry. Like वो इतना ज्यादा गुस्सा हो गया था, मतलब इतना ज्यादा कि 7 बार आपने एक ही सवाल पूछ लिया. तो डैड वेंट टू हिज रूम. डैड अपने कमरे में गए, अपनी डायरी लेके आते, राइट. और बच्चे को बोलते ये पढ़ना जरा. तो आज के दिन, मतलब उस दिन करीब 10 से 20 साल पहले उसके बच्चे ने उससे सवाल पूछा था कि डैड व्हाट इज दैट. एंड 24 टाइम्स आई रिप्लाइड दैट इज अ स्पैरो, राइट. सो यू गेटिंग द पॉइंट, right? We get so angry when we were child. We used to ask our parents the same question 50 times, and now if I ask you same question 3 times, you will get like, why the heck is this person is asking me the same question 3 times, right? So this is important. uh,
because we will get to know this later that why it is important. But every child and every not every child, but every man, every human, even if he or she is 80, 90 or 100 years old, they have a capacity of asking every question why. It is often said that the curiosity never dies, right? The why curiosity never dies. When the for the first time I saw this phone, I was like, यार ये phone में क्या होता है, right? Right? इस phone में क्या मिलता है? Like, what is this phone and how it works and how it doesn't works, right? Then I got a laptop. I was like, ये laptop में क्या होता है? The curiosity takes you to places, right? Are you getting it? Like, for example, basically, so when you see this right now, the time is 3:46, 3:47. It's 11th July. So, my wallpaper is take care. I tell myself every day that the world is moving at a very fast rate and you should take care of yourself. So, yeah. So, so coming back to the point, what I wanted to tell you is that simple, that the world is moving at a very fast rate. आपके टीचर्स ने हमेशा बोला होगा आपको कि दुनिया बहुत तेज भाग रही है, आप भी उसकी स्पीड में भाग लो, राइट? मैं कभी कभी सोचता हूँ कि धीरे भी चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं हमेशा ये मानता हूँ कि फेल फास्ट, जितना जल्दी आप फेल हो जाएंगे उतना ही बेटर है जिंदगी के लिए, क्योंकि आप जब लेट फेल होंगे तो बहुत पछतावा होगा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? And it's also very like it's a request that if you guys can open your camera. Like I haven't seen you guys, कितने लोगों को जानता भी नहीं हूँ. So maybe this is the last lecture. Maybe if you want to open your camera, just go ahead. It's not a pressure. कोई pressure नहीं है. I'm just asking you to open the camera because I could see you, right? Because I've never seen you. So yeah, cool. So so this is what it is all about. Like, the curiosity is the only thing that takes you to places. Why एक ऐसी चीज थी जो आइंस्टाइन को कहां से कहां लेके चली गई, राइट? Why एक ऐसी चीज है जो दुनिया को बदल सकती है. You must have heard a very famous quote known as "Be the change you wish to see in the world." कि आप ऐसा चेंज बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं, राइट? करेक्ट. अच्छा थॉट है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही जिंदगी में चेंज होना चाहिए, दैट यू वांट टू बी लाइक, राइट? दैट्स गुड. बट चेंज आता कहाँ से? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, द मोस्ट important thing is we need to ask ourselves where the change comes from. The change doesn't comes in overnight, right? Change has to come from somewhere. We will learn this later कि how the change comes up. तो एक दिन क्या हुआ कि जब मैं क्लास 6-7, एक तो मैंने 9 महीने से बाल नहीं कटवाए तो सामने आ जाते हैं. सो एक दिन क्या हुआ कि मैं जब 8th-9th ग्रेड में था, I was in 8th-9th grade. I used to go and जब मैं सुबह उठता था तो सुबह 3:30 बजे उठ जाता था. फिर पहले घरों में न्यूज़पेपर डालता था, फिर स्कूल जाता था, ठीक है? तो एक दिन क्या हुआ कि 2018 की बात है, 2018 भी नहीं, 2017 की बात है. जून का टाइम था, स्कूल की हॉलीडेज चल रहे थे और मैं 1 महीने के लिए न्यूज़पेपर डालने नहीं आया, राइट? तो एक 1.5 महीने के लिए न्यूज़पेपर डालने नहीं आया, मेरे समर हॉलीडेज चल रहे थे. तो मैं किसी के घर पे न्यूज़पेपर डालता तो वो मुझसे पूछते कि where were you from the last 1.5 months. इंग्लिश में नहीं पूछते, हिंदी में पूछते, where were you from last 1.5 months. तो मैं कहता कि मैं एक्चुअली आया ही नहीं, मैं कहीं बाहर गया हुआ था. इतना बोल के मैं वहां से चले गया. फिर अगले दिन मुझसे ये पूछते तुम कहाँ गए थे. मैंने बोला मैं अमेरिका गया था, ठीक है? अब वो तो होश उड़ गए कि अखबार फेंकने वाला अगर बोल दे कि मैं अमेरिका गया था, ठीक है, तो कितनी बड़ी बात हो गई, ठीक है? अमेरिका जाना साइड की बात तो है नहीं, ठीक है? कि दादर से अंधेरी जा रहे हैं, राइट? इवन दिल्ली, मुंबई से दुबई जाना इज इजी, दादर से अंधेरी जाना इज वेरी मुश्किल, आई कैन टेल यू. सो दैट वाज डिफरेंट, ठीक है? तो ये चीज थी. तो मेरे को उस आदमी ने
पिछले 1-2 हफ्ते तक चिढ़ाता रहा कि अखबार फेंकने वाले भी अमेरिका जा रहे हैं, अखबार फेंकने वाले भी अमेरिका जा रहे हैं। एक दिन मैंने क्या करा, राइट, इंटरेस्टिंगली मैंने एक दिन क्या करा, मैं अपना बिना बताए अपने पापा को पासपोर्ट लेके चले गया, ठीक है, और मैंने उसको दिखाया अपना वीज़ा और इमिग्रेशन स्टैंप एयरपोर्ट का। उस दिन से उसका मुंह बंद हो गया। मेन ऑब्जेक्टिव उसको मुंह बंद करना नहीं था, राइट, कि वी हैव टू शो हिम दैट लुक। मेन ऑब्जेक्टिव ये था उस इंसान का, वो दिखाना चाहता था कि गरीब कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता, राइट। इट हैज बीन ऑफन थिंकिंग कि गरीब तो कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता, राइट, गरीब हमेशा गरीब ही रहेगा, right? ये हमारी थिंकिंग है। बट देश आगे कैसे बढ़ता है? सो व्हेन आई सेड दैट बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड, देश आगे बढ़ता कैसे? देश तभी आगे बढ़ता है जब एक गरीब का बच्चा भी सोच सके कि वो पीएचडी कर सकता है, वो भी स्कूल जा सकता है। जब जिस दिन ये थिंकिंग आ जाएगी, उस दिन देश चेंज हो जाएगा, जिस दिन इक्वालिटी आ जाएगी। बट आप लोग घर पे बैठ के क्या कर सकते हैं? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अभी अभी अगर मैं चेंज लाने की बात करूं तो आप लोग अभी घर पे बैठ के क्या कर सकते हैं? आप लोग एक ही चीज कर सकते हैं, घर में रहिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग करिए। अगर आप ये 3 चीज फॉलो करते हैं तो आप देश बचा रहे हैं, और कुछ नहीं। और आपसे बड़ा हीरो कोई नहीं है, राइट। देश बचाना मतलब ये नहीं कि सिर्फ बॉर्डर पर जाके 3-4 गोलियां खा के आ जाना, राइट। ये कोई देश बचाना नहीं है। कूड़ा नहीं फेंकना, पूरी दुनिया को पता है, आपको भी पता है कि पोल्यूशन कैसे हो रहा है, आपको भी पता है प्लास्टिक नहीं यूज करना, आपको भी पता है कूड़ा नहीं फेंकना, लेकिन हम फिर भी फेंकते हैं। गवर्नमेंट, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बात बता रहा हूँ, गवर्नमेंट एवरी ईयर द गवर्नमेंट स्पेंड्स 30,000 करोड़ रुपीज ऑन स्वच्छ भारत अभियान। 30,000 करोड़ रुपए सिर्फ सड़कें साफ करने के लिए पूरा देश लगा देता है। 30,000 करोड़ रुपए, कैन यू इमेजिन? 30,000 करोड़। क्यों लगाता है? क्योंकि हम लोग, राइट, कूड़ा फेंक देते हैं। वही कूड़ा जो हम लोग डस्टबिन में भी डाल सकते हैं और 30,000 करोड़ रुपए बच सकते हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट पेइंग 30,000 करोड़, यू गाइस आर पेइंग। आप कैसे पे कर रहे हैं? एक छोटा सा 0.50 पैसे का स्वच्छ भारत सेस आपके शॉपिंग में से काट लिया जाता है तो आपको पता भी नहीं चलता, क्योंकि वो 50 पैसे हैं, राइट। और वो अगर हम लोग कूड़ा ना फेंकें और वो हम लोग 30,000 करोड़ रुपीस बचा सकते हैं, राइट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें पर्सनल हाइजीन आती है, हमें पता है कि अपने आप को साफ कैसे रखना है, बट अपने सराउंडिंग को साफ कैसे रखना है वो नहीं पता, राइट। प्रॉब्लम तो हजारों है, मैं आपको अभी हजारों प्रॉब्लम बता सकता हूँ यहाँ बैठ के, राइट। इस समय अगले आधे घंटे में आपको मैं 10 प्रॉब्लम तो ऐसे ही बता सकता हूँ, बट मैंने उस प्रॉब्लम के लिए क्या किया? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, प्रॉब्लम बताना प्रॉब्लम नहीं है। द प्रॉब्लम इज दैट कि मैंने उस चीज़ के लिए क्या करा। क्या मैंने उस चीज़ को ठीक करने के लिए कुछ कोशिश करी? नहीं करी तो आप अपना प्लीज़ मुंह बंद रखिए, क्योंकि वो ज़रूरत नहीं है आपके ओपिनियन की। ऑलरेडी इतने लोग ओपिनियन दे रहे हैं, तो आपकी ओपिनियन की ज़रूरत नहीं है, राइट। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट यू टू गाइस टू नो दैट कि भाई, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि there are multiple people who are giving opinion right now. If you go anywhere, आप सोशल मीडिया पे जाइए या कहीं पे भी जाइए, बहुत सारे आपको ओपिनियन देते हुए लोग मिल जाएंगे, राइट। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने उस चीज़ के लिए क्या करा। आपने कुछ नहीं करा, फिर भी आप बोल रहे हो, राइट। तो ये तो खैर नॉर्मली बात होगी, बट व्हेन इट कम्स टू यू, राइट। जब मैं छोटा था तो मुझे बास्केटबॉल खेलने का बहुत शौक था। उतने पैसे नहीं थे कि मैं अफोर्ड कर पाता, शूज़ खरीद पाता नाइकी के, जॉर्डन, राइट। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं जर्सी खरीद पाता, और इतने पैसे नहीं थे कि स्कूल में मैं 1,000 रुपये दे के पीछे आर्यन लिखा होता और उस जर्सी में मैं बास्केटबॉल खेलता। उतने पैसे नहीं थे फैमिली के पास, इसलिए मैं कभी स्पोर्ट्स खेल नहीं पाया, बट शौक बहुत था खेलने का, राइट। एंड तो मैं सिर्फ देखता था लोगों को खेलते हुए, अपने सीनियर्स को मैं देखता था, और तब अच्छा लगता था कि यार ये कितना मज़ा आता हुआ इनको इन लोगों को खेलने में। एक दिन क्या हुआ, मेरे स्कूल में एक सीनियर थे, तो आपके स्कूल में भी वो होते होंगे हाउसेज, जैसे मेरे वहाँ पे फ्रेंडशिप हाउस था, फ्रीडम हाउस था। तो स्कूल डिवाइडेड होते हैं बच्चों में, आपके स्कूल में भी कुछ ना कुछ होंगे, गंगा यमुना सरस्वती ऐसा कुछ हाउस होता होगा। मेरे स्कूल में भी था। तो मेरे उस हाउस में मेरे एक भैया मैच खेला करते थे, तो मैं उनसे पूछता था कि यार आप कैसे शॉट मार लेते हो? तो उन्होंने बोला ये
बच्चे नहीं मार पाते इस शॉट को। बास्केटबॉल में एक शॉट मारते हैं जिसको कहते हैं 3 पॉइंटर। शायद आप में से कोई बास्केटबॉल खेलता हो तो उनको पता होगा 3 पॉइंटर। तो मैंने भी सोचा यार मैं क्यों नहीं मार सकता 3 पॉइंटर। तो मैंने करीब 2-3 महीने प्रैक्टिस करी। मेरा फ्राइडे होता था, 8th पीरियड होता था गेम्स का। तो उसमें मैंने प्रैक्टिस करी और फाइनली मैं 3 पॉइंटर मारना सीख गया। और आज भी अगर मैं 3 पॉइंटर मारने की कोशिश करूँ तो आज भी मैं 3 पॉइंटर मार लेता हूँ। क्यों मार लेता हूँ? वो तो 4 साल पुरानी बात बता रहा हूँ मैं आपको। क्यों मार लेता हूँ? क्योंकि मैंने उसको घमंड में नहीं लिया कि उसने मुझे चैलेंज कर दिया कि 3 पॉइंटर मार के दिखाओ। अगर उसने वो ये भी बोला कि तुम नहीं कर सकता, तो मैंने उसको पॉजिटिवली लिया कि मैं कर सकता हूँ। और आज भी अगर मैंने उसको घमंड में भी लेके करा होता, शायद मैं मार लेता 3 पॉइंटर, लेकिन मैं लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव नहीं कर पाता। राइट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब हमारी म्यूजिक की क्लास हुआ करती थी, जब मैं क्लास 9th में था, 9th और 8th में, तो 9 आई थिंक 9th में ही था मैं, 9th या 8th में था। तो जो म्यूजिक की क्लास हुआ करती थी वो 2 चीज़ों में डिवाइडेड थी, इंस्ट्रूमेंटल एंड वोकल। तो मेरे पास, मुझे ड्रम्स बजाने का बहुत शौक था। शौक क्या था कि देख अच्छा लगता था जब कोई ड्रम्स बजाता था। तो स्कूल असेंबली में मॉर्निंग में जब प्रेयर होती थी, कोई ना कोई ड्रम बजाता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं भी बजा सकता हूँ। तो जब मैं अपने टीचर के पास गया, मैंने पूछा कि मुझे ड्रम्स बजाने सीखने हैं। उन्होंने बोला कि तुम तभी सीख सकते हो जब तुम्हारे पास होगा। राइट, मेरे पास ड्रम्स नहीं थे। तो मैंने पूछा कितने के आते हैं? उन्होंने बोला अच्छे जो ड्रम्स हैं वो 10,000 के आ जाते हैं। तो मुझे पता था कि पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते 10,000 के ड्रम्स। तो मुझे सीखना था। तो मैंने क्या करा, मैंने मुंह से ड्रम्स बजाने शुरू कर दिया, जिसको कहते हैं बीट बॉक्सिंग। तो मैंने बीट बॉक्सिंग शुरू कर दी। भले मैं, मेरे पास आज भी ड्रम्स नहीं है, बट मुझे बीट बॉक्सिंग आती है। राइट, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। भले ही शायद मेरे को अपॉर्चुनिटी ना मिली, मैंने खुद के लिए अपॉर्चुनिटी बना ली। राइट, मैं ये सबको बताना चाहता हूँ कि चाहे जितने भी लोग हैं, चाहे यहाँ पे टीचर्स होंगी, स्कूल प्रिंसिपल्स होंगे, बच्चे हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आप प्लीज ये बात को समझ लीजिए, अपने अंदर डाल लीजिए। ठीक है, कि चाहे आपका स्कूल एसी का बस देता हो, चाहे आपके स्कूल में 10 फ्लोर हो, चाहे आपके स्कूल में एसी क्लासेस में एसी लगी हो, ठीक है, उससे स्कूल बड़ा नहीं बन जाता। आपका शायद रिसेप्शन में 50 अवार्ड रखे हों और स्कूल बहुत फैंसी बना रखा हो और नाम के आगे इंटरनेशनल भी लगा रखा हो, तो स्कूल उससे आगे नहीं बढ़ता। राइट, चाहे आप खाना ताज होटल से मंगवाते हो स्कूल में जब फंक्शन होता, तो उससे स्कूल आगे नहीं बढ़ता। स्कूल कब आगे बढ़ता है? स्कूल तब आगे बढ़ता है जब आपके बच्चे क्लासरूम में मेहनत करते हैं। राइट, तब जाके स्कूल आगे बढ़ता है। चाहे घटिया सा घटिया स्कूल क्यों ना हो, घटिया सा घटिया स्कूल क्यों ना हो, जिसके छत नहीं हो, वो भी स्कूल आज बहुत फेमस है। राइट, बेस्ट एग्जाम्पल इसी क्लास में धनंजय सर ने दिया था थोड़े दिनों पहले। उन्होंने बताया था कि उनका स्कूल नक्सल एरिया में है, बट उनका स्कूल रशिया, दुबई, यहाँ कंपटीशन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अवार्ड दिया है। कोई इंटरनेशनल स्कूल दिल्ली का लेके गया क्या? कोई गया रशिया? क्या कोई गया इंटरनेशनल स्कूल जो ताज होटल से खाना लेके आता है? राइट, कोई गया जिसके स्कूल में एसी बस हो? कोई नहीं गया। कौन गया? वो गया जिसके पास कुछ नहीं है। क्यों गया? क्योंकि उसको पता था कि अगर वो नहीं करेगा तो शायद वो उसी गंद गंद में खड़ा रहे। मुझे पता था कि अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो मैं भी सुबह 3:30 बजे आज भी अखबार फेंकता रहूंगा। आई विल स्टिल सेल न्यूज़पेपर इफ आई डोंट डू एनीथिंग इन माई लाइफ। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं, कुछ लोग पीछे रह जाते हैं? ऐसी बात नहीं किसी में कैपेबिलिटी नहीं है। दैट इज नॉट द इंटरेस्टिंग। द ओनली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट लोगों को वैल्यू पता नहीं है। मेरे पास ये फोन है इस समय। राइट, राइट, अब इसका नया मॉडल आएगा तो मुझे लगेगा नहीं यार, अभी ये मेरे लिए बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है, ये फोन मेरे लिए बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है। अब क्या होगा जब इसका नया मॉडल आएगा, तो मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं, मुझे एक और फोन खरीदना चाहिए इससे बेटर, तो इसका वैल्यू गिर जाएगा। राइट, राइट, दिस इज लाइफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये रिमेंबर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट एवरीवन हैज टू रिमेंबर दैट कि आपका स्कूल चाहे कुछ भी कर ले, स्कूल उससे बड़ा नहीं होगा। स्कूल तब बड़ा होगा जब आप मेहनत करोगे।
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, आप सब जानते होंगे, राइट? सब लोग जानते होंगे। यहाँ पे ऐसा शायद कोई हो जो नहीं जानता होगा, नहीं भी जानता कोई बात नहीं, राइट? आप में से सब जानते होंगे लगभग। क्यों जानते हैं? आपको उनमें से, आप मुझे उस कोर्स, वहां पे 10 कोर्स बता सकते हैं जहाँ पे ऑफर करा जाता हो? शायद किसी को पता हो। हम क्यों जानते हैं हार्वर्ड को? हार्वर्ड को इसलिए नहीं जानते क्योंकि हार्वर्ड टॉप कॉलेज है। टॉप कॉलेज कैसे बन गया? क्योंकि वहां के बच्चों ने मेहनत करी और उसको टॉप बनाया। हार्वर्ड के मैं आपको 10 एलुमनाई गिना सकता हूँ। एलुमनाई ही एक ऐसे लोग होते हैं जो स्कूल और कॉलेजों को आगे बढ़ाते हैं, राइट? आज भले मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, राइट? मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ ग्रीनफील्ड स्कूल का, दिल्ली में। सबसे जो इंक्लेव है दिल्ली में, ग्रीनफील्ड स्कूल। उस स्कूल को कोई नहीं जानता था। कब से जानने लगे? जब एक यूट्यूबर निकला, भुवन भाम। भुवन भाम जैसी आउट ऑफ द बॉक्स निकले और एक बहुत बड़े सुपरस्टार बने, तब उस स्कूल को सब जानने लगे कि कोई ग्रीनफील्ड स्कूल करके भी है। उससे पहले कोई नहीं जानता था। जानते होंगे लोग, आई एम नॉट सेइंग कोई नहीं जानता, जानते ऑफ कोर्स होंगे, लेकिन आज शायद पूरा इंडिया जानता है कि भुवन भाम उस स्कूल से पढ़े, राइट? द दून स्कूल देहरादून में है, सब लोग जानते हैं। क्यों जानते हैं? मुझे नहीं पता कि उस स्कूल में एसी बस है कि नहीं बसे, मुझे ये पता कि राजीव गांधी उधर पढ़ते थे, राइट? तो स्कूल और ये एलुमनाई कैसे आगे बढ़ते हैं? एलुमनाई ऐसे आगे बढ़ते हैं क्योंकि दो चीज है। मैं आपको आपको एक बहुत, आज आई वांट टू टॉक वेरी फ्रीली। मैं आज ऐसा कोई एस्ट्रोनॉमी का लेक्चर नहीं बताना चाहता, मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ जो सिंपल सी बात है, जो शायद बहुत लोगों को समझ नहीं आती, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से समझाना चाहता हूँ। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैं आपको एक बात बता दूँ, मेरे 64% आए थे क्लास 12 में। कल ही सीबीएसई के रिजल्ट आए। जब मेरे 64% आए थे, 4 दिन मैं घर में बंद था। when I got 64%, मेरे पेरेंट्स ने मुझे 4 दिन घर से बाहर निकलने नहीं दिया, क्योंकि बेइज्जती थी, मैं एक फेलियर था। इतना बड़ा फेलियर था कि शायद मैं अपने फेस सोसाइटी के पास नहीं दिखा सकता था, राइट? एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मेरे पेरेंट्स मार्क्स बताने में इतना शाई फील करते थे कि वो झूठ बोल देते थे कि मेरे बेटे के 80% आए, जहाँ पे वो 64% आते थे। क्यों? क्योंकि सोसाइटी ने इतना बड़ा ग्रज डाल दिया था कि अगर 60% से ऊपर नहीं आए, सॉरी 90 से ऊपर नहीं आए, तो आपका जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। मेरे क्लास 10th में 59% आए थे और क्लास 12th में 64% आए थे। स्कूल ने हर एक बच्चे को एनुअल डे पे बुलाया, सबको अवार्ड दिया, मेरे को नहीं बुलाया, किसी भी 60% वाले को नहीं बुलाया। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मली बता रहा हूँ कि किसी भी 60% को नहीं बुलाया, 50%। क्यों? क्योंकि वो स्कूल की बेइज्जती करवा देते हैं। स्कूल के बाहर बड़े बड़े बोर्ड लग गए कि 90% वाले बच्चे देख लो ये है। स्कूल की वेबसाइट खुली ना खुले, लेकिन सबसे पहले उनकी फोटो जरूर आ जाती है। लेकिन जब 60% वाला भुवन बाम जैसा बंदा, राइट, जब वो हिट हो जाता है और जो बड़ा आदमी बन जाता है, तो जिंदगी भर अगले 100 साल तक स्कूल सिर्फ उसका नाम लेता है। तो वो 90% वाले मैटर नहीं करते। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ? यही बताना चाह रहा हूँ कि लोग आपकी जिंदगी में क्रेडिट ले लेंगे जब आप कुछ कर दिखाओगे, और जब आपके पास कुछ नहीं होगा, आपको एक आदमी भी हेल्प करने नहीं आएगा। और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, यहाँ के लिख के ले जाओ। जब मुझे अमेरिका जाना था, जब मेरे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हो गया था, कोई किसी ने हेल्प नहीं करी। मेरे जो टॉप क्लास फ्रेंड्स जो थे ना, जो BMW ऑडी में घूमते थे, किसी ने हेल्प नहीं करी। सबको पता था कि मेरे को 1 करोड़ रुपए चाहिए और मैंने आधा लोन ले लिया, बस आधी की हेल्प चाहिए, किसी ने हेल्प नहीं करा। अभी मैं अगर अभी ऑन द स्पॉट कॉल करूँ किसी फ्रेंड को, लेट्स गो टू दिस प्लेस, लेट्स गो टू अ क्लब, सब चलेंगे, चलो उठ के चलेंगे। आपको पैसे नहीं देने, सब देंगे आपके लिए, राइट? बट जब आपकी एडमिशन की बात होती है, जब आपकी हेल्प चाहिए, तो कोई नहीं आएगा सामने, राइट? जिंदगी में अभी आप बहुत छोटे हो, आप में से काफी लोग, आप एक चीज समझ लो, मैं आपको सबको समझाना चाहता हूँ कि जिंदगी में आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा, आपको सिर्फ खुद हेल्प करनी है अपनी। और जिस दिन ये समझ जाओगे, अगर बहुत लेट समझोगे तो बहुत ज्यादा बहुत कुछ हो जाएगा। अगर आप बहुत जल्दी सीख लोगे, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में, जब मैं 17 साल का था तभी मैंने सीख लिया था, और आज मैं खुद अपनी फीस खुद भरता हूँ कॉलेज की। मेरी 10 लाख रुपए फीस है साल की, मैं खुद ही भरता हूँ, मैं किसी को नहीं किसी पेरेंट्स नहीं भरते, राइट? मैंने क्योंकि सीख लिया था जिंदगी में कि यार खुद हेल्प करनी है। भले ही मैं नहीं, शायद नहीं जा पाऊँ उस जगह पे, बट जिंदगी में कभी ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने ट्राई नहीं करा। लोग मुझसे पूछते हैं
कि आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है, तो मैं ये नहीं बोलता कि मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट मैंने कोई एस्ट्रॉइड डिस्कवर कर दिया है, कि मैं अशोका यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, तो मैं यहाँ पढ़ता हूँ, वहाँ पढ़ता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट अचीवमेंट ये है कि मैं आई ड्रीम, कि मेरे सपने हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ, राइट। और वो सपने आपको लेके जाते। मेरा सपना था कि मैं एस्ट्रोनॉमर बनूं, मेरा सपना था मैं भी कुछ करूं। शायद मैं वो अभी तक कर नहीं पाया, लेकिन मैं इतना श्योर हूँ कि मैं कर सकता हूँ। और जिस दिन कर लूँगा, तो जिन लोगों ने मुझसे ये कहा था कि तू कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ अखबार बेच सकता है, रिक्शा चला सकता है, मेरे क्लास टीचर ने मेरे फादर से बेट लगाई थी। मुझे आज भी याद है, नवंबर 9 2018 की बात है। मुझे आज भी याद है, वो पीटीएम का दिन था। मेरे मेरे डैड रोने लगे थे स्कूल में, क्योंकि मेरे टीचर ने बेट लगा ली थी, और ऐसी बेट लगाई थी कि शायद मैं अपनी आंख कभी ऊंची नहीं कर पाया स्कूल में। और बेट ये थी कि मैं 12th पास नहीं कर पाऊंगा, और कर भी पाया तो मैं कभी कॉलेज नहीं जा पाऊंगा। और उन्होंने ये बेट लगाई, उन्होंने, मेरे टीचर ने ये तक बोल दिया था, ठीक है, ये तक बोल दिया था कि मैं मेक श्योर करती हूँ कि आर्यन के लिए मैं बस ड्राइवर की नौकरी यहाँ पे रखवा लूंगी। और मेरे टीचर ने ये भी बोला था, आपके पास तो उतने पैसे भी नहीं है कि आप अपने बच्चों को पढ़ा सको किसी प्राइवेट कॉलेज में। उसी दिन मैंने ठान ली थी। ये नहीं ठानी थी कि मैं दिखा के रख दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये सब नहीं। मैंने ये समझ गया था कि अब कुछ करना है, राइट। मेरे स्कूल में यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे स्कूल के भी हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि स्कूल वूल शायद कभी मेरे बच्चे हुए, व्हेन आई गेट मैरिड एंड आई विल हैव किड्स, मैं कभी उनको स्कूल ही नहीं भेजूंगा। स्कूल इज द मोस्ट करप्ट थिंग एवर हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। स्कूल से बड़ा करप्ट कोई नहीं है, राइट। क्यों? इसलिए नहीं है क्योंकि स्कूल में कभी सिखाते ही नहीं इक्वालिटी क्या है। मेरे स्कूल में, मैं आपको बता रहा हूँ, आप बहुत छोटे हैं, बट फिर भी मैं ओपन अप करके बता रहा हूँ, क्योंकि आप शायद अभी सीख लें तो बेटर है आपके लिए। मेरे स्कूल में जब लड़कियां लड़कियां जो ऐसे जो छुट्टियां बांधती हैं, अगर वो दो नहीं होती थी तो टीचर्स स्कूल में असेंबली में ऐसे बाल पीछे से खींच देती थी और बोलती थी कि दो छुट्टियां बनाओ, सबके सामने। पूरा आधा स्कूल खड़ा है और किसी के ह्यूमिलेट करना है, ऐसे खींच के कहती थी कि दोनों दोनों छुट्टियां बनाओ। अगर बच्चे को नहीं बनाने आती थी तो यही बोलते थे, तुमने सीखा क्या है घर में। उसी समय लड़कियों को दिखा दिया जाता था कि आप और सिर्फ घर के लिए बने हो, और लड़के बाहर जाएंगे, बाहर काम करेंगे। यही प्रॉब्लम थी हमारे देश की, और यही प्रॉब्लम थी स्कूल्स की। कहाँ से शुरू होता है बच्चा? आपने अभी स्टोरी सुनी होगी लॉकर्स रूम, बॉयज लॉकर रूम, ये कैसे शुरू होता है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल। ये स्कूल से शुरू होता है, राइट। स्कूल से शुरू होके फिर ये बढ़ता है घर तक, घर से फिर कॉलेज, कॉलेज से वर्क प्लेस। आपको पता नहीं कि आप क्या कर रहे हो, बट क्योंकि वो बचपन से डाल दिया जाता है, राइट, राइट। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये भी है कि जब लड़कियां स्कर्ट पहनती हैं तो शर्ट अगर थोड़ी ऊपर हो जाए तो टीचर बोलती है कि इसको नीचे करो। क्यों? दिस इज द मेन प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि बॉयज डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। एक स्कूल है डीपीएस रोहिणी, उसने ये अपने लड़कियों को सर्कुलर जारी कर दिया था, क्या था कि कपड़े आप ढंग से पहन के आइए, पूरा कवर करके रखिए अपने पाँव और अपने हाथ। क्यों? क्योंकि बॉयज गेट डिस्ट्रैक्टेड। दोबारा बोल रहा हूँ, बॉयज गेट डिस्ट्रैक्टेड। क्यों? क्यों होते हैं बॉयज डिस्ट्रैक्ट? इसलिए होते हैं क्योंकि आज तक आपने बॉयज को कभी सिखाया ही नहीं कि देखते कैसे हैं, राइट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हम लोग आज तक सिखाया ही नहीं। एज अ पेरेंट और एजुकेटर, मेरी खुद की एक छोटी सिस्टर है, और मैं अपनी मम्मी को कभी कभार नोटिस करता हूँ कि वो मेरी बहन को बता रही होती है कि नहीं ये मत करो, ये मत पहनो। एज अ पेरेंट और एजुकेटर वी सी व्हाट गर्ल्स वेयर। हम देखते हैं कि लड़कियां क्या कपड़े पहनती हैं और क्या क्या कर रही हैं, और हम उनको ये भी बताते हैं कि दैट अवॉइड गेटिंग असॉल्टेड। हम ये भी बोलते हैं कि असॉल्ट होने से अपने आप को बचाओ, रेप होने को अपने आप से बचाओ, राइट। बट हम कभी लड़कों को नहीं सिखाते कि असॉल्ट मत करो। हम कभी लड़कों को ये नहीं सिखाते कि रेप मत करो, बट हम हमेशा अपनी लड़कियों को बचा लेते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्यों? क्योंकि हम इतना शर्माते हैं बात करने में इन सब चीजों के लिए कि हम बोल ही नहीं पाते। हम कभी ओपन अप ही नहीं है इन डिस्कशन के लिए। स्कूल की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, राइट। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और यही प्रॉब्लम है जो क्राइम में बदल जाता है, और ये पता नहीं चलता।
दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट एवरीवन नीड्स टू रिमेंबर। और ये सबके लिए है, यहाँ पे जितने भी टीचर्स बैठे हैं और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कि आप समझ लीजिए, राइट। दैट्स इट। और ये और कुछ नहीं। सो मैं थोड़ा फॉर्म में आ गया था। सॉरी। सो दिस इज द थिंग, दिस इज हाउ थिंग्स वर्क अप। तो मैं आपको एट द एंड इन द शॉर्ट में यही बताना चाहता हूँ कि आप प्लीज सीख लीजिए कि आपको खुद की हेल्प करनी है, तो खुद आगे बढ़ना है, राइट। मेरे पेरेंट्स कभी सरकारी नौकरी में नहीं थे। मेरे डैड 30 साल पहले दिल्ली आए थे, वेजिटेबल सेलर करके सब्जियां बेचते थे दिल्ली में, बसंत विहार में, राइट। जब मैं जब मैं पैदा हुआ, जब मैं आया दिल्ली, तो मैं उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ था। और मैं दिल्ली जब आया तो पेरेंट्स ने ये बताया कि पेरेंट्स हमेशा चाहते थे, फादर हमेशा चाहते थे, मदर हमेशा चाहती थी कि शायद मैं स्कूल नहीं जा पाया, वो स्कूल नहीं जा पाए, तो मैं शायद शायद स्कूल जाऊँ, राइट। एंड तो उनका यही ड्रीम था। मैं आपको आज एक बहुत पर्सनल स्टोरी बताना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि पेरेंट्स का कितना हार्डशिप रहता है। 2003 में जब मेरा एडमिशन होने वाला था चिन्मय विद्यालय बसंत विहार में, मेरे स्कूल का नाम है, तो उस समय झुग्गी झोपड़ी के बच्चे नहीं रहते थे उस समय, क्योंकि बहुत बड़ा ब्लोट था स्कूल के लिए अगर कोई झुग्गी झोपड़ी का बच्चा आ जाता था। मेरे डैड सिक्योरिटी वॉचमैन का काम करते थे किसी के घर पे, तो मेरा एडमिशन उनके घर से हो गया था। तो मेरा घर का एड्रेस कहीं और था और मैं रहता कहीं और था, क्योंकि स्कूल झुग्गी झोपड़ी वालों को नहीं लेगा, राइट। क्योंकि वो लोग बदतमीज होते हैं, वो स्कूल को बिगाड़ देंगे, झुग्गी झोपड़ी वाले, राइट। तो क्या हुआ उसके बाद, स्कूल जब हुआ, स्कूल की डोनेशन फीस भरने की बात आई, राइट। अब ये सब तो पता नहीं था कि डोनेशन फीस भी भरते हैं। 20 हजार डोनेशन फीस चाहिए थी करीब, आप ये मानिए 17-18 साल पहले। तो मेरी मॉम ने ज्वेलरी बेच के 20 हजार स्कूल की डोनेशन फीस भरी, और उस समय से हम लोग फीस भरते आए हैं। पैसे नहीं थे पेरेंट्स को, मुझे नहीं पता पेरेंट्स ने कैसे फीस भर दी, लेकिन भर दी। और मैंने 12 साल एक भी ऐसा दिन नहीं हुआ कि जिस दिन फीस ना भरी हो। कभी ऐसा नोटिस नहीं आया स्कूल की तरफ से कि आपने फीस नहीं भरी। फीस तो हमेशा भर दी, और मुझे नहीं पता कैसे भरी, बट भर दी। मुझे आज तक नहीं बताया पेरेंट्स ने, बट भर दी फीस। सो मूविंग फॉरवर्ड, आगे जब बढ़ते गए तो पेरेंट्स का हमेशा से ड्रीम था कि भाई बच्चा कुछ करे, इतने अच्छे स्कूल में जा रहा है, राइट, इतनी बढ़िया एजुकेशन मिल रही है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा रहा है, राइट। पेरेंट्स को बहुत बड़ी हाई होप थी, एंड क्यूरियोसिटी मुझे हमेशा से थी। मैं उतना इंटेलिजेंट बच्चा नहीं था पढ़ने में, राइट। बट हमेशा से ये था कि कुछ अलग सोचना है, कुछ अलग करना है। बचपन में कुछ पता नहीं होता था, बचपन में तो मैं ट्रेन इंजन ड्राइवर बनना चाहता था, क्योंकि ट्रेन देख के बहुत अच्छा लगता था। जब वो हॉर्न बजाती थी ट्रेन, तो बहुत बढ़िया लगता था कि हाँ भाई ट्रेन इंजन ड्राइवर बनना है, राइट। फिर आगे बढ़ते गए धीरे धीरे, ट्रेन इंजन ड्राइवर से हम हट के, फिर मैं जब क्लास 5th 6th में आया तो एस्ट्रोनॉमी का बहुत शौक हुआ। एस्ट्रोनॉमी धीरे धीरे शुरू करी। तो एस्ट्रोनॉमी, गिव मी 1 सेकेंड। तो आगे आगे धीरे स्कूल में बढ़ते गए, फिर एस्ट्रोनॉमी का बहुत शौक हुआ, राइट। फिर आगे से फिर हमें पता चला कि धीरे धीरे फिर हो गया, जो भी हुआ स्कूल पर हमने कंप्लीट कर लिया एजुकेशन। एस्ट्रोनॉमी का बहुत शौक था। 2014 में मैंने एक एस्ट्रॉइड डिस्कवर करा मार्स और जुपिटर के बीच में, और अपने स्कूल के नाम पे रखा। मैंने अपने स्कूल के नाम पे रखा एज ए ट्रिब्यूट। मुझे अपना स्कूल बहुत पसंद था, ऐसी बात नहीं है कि आई हेट माई स्कूल। देखिए, आप स्कूल हेट नहीं करते, आप टीचर्स को हेट करते हैं। अब हेट का मतलब क्या होता है? हेट का मतलब ये नहीं होता कि टीचर को हेट करना मतलब भाई मुझे टीचर पसंद नहीं है। आपको टीचर का रवैया पसंद नहीं है, बस सिंपल सी बात है। और उसके आगे आप मत सोचिए, तो इट्स बेटर, राइट। तो धीरे धीरे
मेरी स्कूलिंग भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। मैं एक फेक एड्रेस पे पढ़ता था। जब मेरा पासपोर्ट बनने के लिए आया तब पता चला स्कूल को कि मैं इस एड्रेस पे पढ़ता हूँ और मैं इस एड्रेस में रहता हूँ। क्या कौन? तो धीरे धीरे स्कूलिंग बढ़ती रही। आपको भी चैट में, इन द चैट बॉक्स यू विल गेट सम लिंक्स एंड यू विल गेट सम मटेरियल। जितने भी आज तक लेक्चर्स हुए, गूगल ड्राइव फोल्डर आपको मिल गया होगा, तो यू कैन जस्ट गो अहेड एंड यू कैन एक्सेस ऑल द थिंग्स दैट वी स्टडीड इन द क्लासरूम। जितनी भी वीडियोस थी, मेरे पास टाइम बहुत कम है क्योंकि आई हैव टू गेट बैक टू अनदर लेक्चर। शायद आज क्वेश्चन एंड आंसर्स ना हो पाए। तो इसमें जो जितने भी चीज़ें थी हमने ड्राइव फोल्डर में डाल के यू कैन एक्सेस इट। एंड स्कूलिंग के आगे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर आई गॉट इनटू कॉलेज। यही जर्नी बहुत उतनी खास नहीं थी, मतलब जितनी थी उतनी थी। बट आज आई वर्क विद गवर्नमेंट नाउ। आई वर्क विद द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर। तो जो प्राइम मिनिस्टर के जो साइंटिफिक एडवाइज़र होते हैं, मैं उनके ऑफिस में काम करता हूँ। बट ज़िंदगी में ये कोई नहीं बोल सकता कि मुझे ये नौकरी और मुझे ये चीज़ बोलते हैं ना पेरेंट्स की वजह से मिली, क्योंकि पेरेंट्स को खुद ही नहीं पता है। ये मैंने अपनी खुद की मेहनत से लिया। ज़िंदगी में असली मज़ा तब आता है जब आप खुद की मेहनत से आगे बढ़ते हो, तो क्योंकि आपको कोई बोल नहीं सकता कि आप वहाँ पे इसलिए हो क्योंकि मेरी वजह से हो। मैंने कभी आज तक किसी से अप्रोच नहीं करा कि आई वांट टू वर्क फॉर द प्राइम मिनिस्टर और समथिंग लाइक दैट और व्हाटएवर। वो खुद ही ऑफर सामने से आया था। मैं इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत प्राउड फील होता है जब आप खुद बोलते हैं कि यार ये चीज़ मैंने खुद से ली है, ये चीज़ मुझे किसी ने दिलाई नहीं है। राइट? तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक टाइम ऐसा था कि शायद मेरे पास खाने के लिए भी नहीं था, बट आज एक टाइम ऐसा है कि मेरी खुद की कंपनी है। राइट? आज टाइम एक ऐसा है कि 4 लोग 5 लोगों की सैलरी मेरी कंपनी देती है। तो टाइम ऐसा होता है कि टाइम तभी चेंज हो सकता है जब आप टाइम के साथ चेंज हो। एंड टाइम कैन ओनली चेंज व्हेन यू वांट टू चेंज। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एट द एंड द पीपल हु वांट टू परस्यू एस्ट्रोनॉमी एज अ करियर, ये अब आपके लिए है। ठीक है? वो ये है कि एस्ट्रोनॉमी एज अ करियर इज एन अमेजिंग ऑप्शन। I would just want to tell you one thing, that every little endeavor is made to create this change. Astronomy इतना बड़ा फील्ड नहीं है इंडिया में, स्पेशली इंडिया में, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ नहीं कर सकते। देयर आर मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स। मैं एक एक करके इंस्टीट्यूट्स का नाम लिख रहा हूँ चैट बॉक्स में। ठीक है? चैट बॉक्स में ज़रा नज़र रखना। UCCA, IIA, IISC, IIT बॉम्बे, दिल्ली, चेन्नई, मद्रास, कानपुर, दिल्ली IIT बॉम्बे, कानपुर, खड़गपुर। ये इंस्टीट्यूट्स हैं। थोड़ा सा स्पेलिंग अगर एरर हो जाए तो डोंट माइंड इट। बॉम्बे, दिल्ली, चेन्नई, कानपुर, खड़गपुर, ये इंस्टीट्यूट्स हैं जो इन एस्ट्रोनॉमी को कुछ तरीके से देखते हैं। आयु का पुणे में है, IISc, PRL अहमदाबाद, PRL है अहमदाबाद में, और आपका रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट RRI, ये है बेंगलुरु में। ये इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो इंडिया में एस्ट्रोनॉमी कराते हैं। ठीक है? इनमें कैसे आते हैं? You can pursue only astronomy in one way, that is if you want to uh, like see, there's only one way. You can't do anything at undergrad level. मतलब अंडर ग्रेजुएट लेवल पे आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे आप कॉलेज के बाहर निकलते हैं तो 3 साल की डिग्री आप लेते हैं, जो BA जिसको आप कहते हैं, BA इकोनॉमिक्स, BA दिस। तो इंटरेस्ट नहीं। जब BA बैचलर ऑफ आर्ट्स मतलब जब आप कोई आर्ट से रिलेटेड कोई कोर्स करते हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया, राइट, आपका इकोनॉमिक्स हो गया, ये सब आता है, राइट। एंड देन आता है BSc, बैचलर ऑफ साइंसेज। जब आप साइंस में बैचलर डिग्री पाते हैं, बैचलर इज द फर्स्ट थिंग दैट आप बैचलर कोर्स में 3 साल या 4 साल का कोर्स करते हैं। फिर उसके बाद आप ग्रेजुएट कोर्स करते हैं जिसको मास्टर्स भी कहते हैं। मास्टर्स के बाद फिर आप आते हैं किस पे, कौन से लेवल पे? पोस्ट PhD लेवल। फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। बहुत लंबा है, मतलब 15-20 साल लग जाते हैं आपको ये सब कंप्लीट करने में। डिपेंड होता है कि आप कौन से इंस्टीट्यूट, कौन से कॉलेज, कौन सी डिग्री। अलग अलग डिग्री का अलग अलग तरीके से होता है, राइट। So this is important, and this is the important thing that uh, everyone needs to remember.
तो ये इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको कराते हैं, राइट। ये इंस्टीट्यूट्स और ऑल्सो लाइक ये पता है कैसे होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई डाउट होता है तो मेरे सामने एक बैठे रहते हैं, ठीक है। तो ये जब भी कोई प्रॉब्लम हो रही होती है, चाहे मैं मिस कर जाता हूँ कोई पॉइंट, तो वो कोऑर्डिनेट करते हैं, या आसपास जो लोग बैठे रहते हैं वो लोग कोऑर्डिनेट करते हैं। जब भी कुछ मिस होता है तो मुझे लिख के तुरंत बता दिया जाता है कि ये मिस हो गया, यू हैव टू स्पीक दिस। तो आज मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आने के लिए, टू शो देयर फेस एट द एंड, दैट्स ओके। सो दिस इज द थिंग, राइट। सो जैसे आप में से अगर कोई न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है तो हम उसको तुरंत बाहर का रास्ता दिखाते हैं। वो जो टीम यहाँ पे बैठी है वो करती है कि कौन गाली दे रहा है, कौन बदतमीजी कर रहा है, जैसे पहले होता था। जो हमने थोड़ा सा हम सोचते थे कि किड्स हैं, इट्स ओके, बट यू गाइज आर नॉट किड्स, यू जस्ट गाइज आर व्हाटएवर। या सो दिस इज द थिंग। अब इंडिया में अगर एस्ट्रोनॉमी करनी तो ये इंस्टीट्यूट्स आपके एस्ट्रोनॉमी कराते हैं, बट अंडर ग्रेजुएट लेवल पे आप कोई भी चीज़ परस्यू कर सकते हैं। केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, ये सब चीज़ें हैं जो अगर आप अंडर ग्रेजुएट लेवल पे करेंगे कॉलेज के बाद आने के बाद, फिर आप एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, कॉस्मोलॉजी इंडिया में कर सकते हैं। अब इंडिया में एक और कोर्स ऑफर होता है एस्ट्रोबायोलॉजी, एस्ट्रोबायोलॉजी, और ये सिर्फ ऑफर करता है एमिटी यूनिवर्सिटी मुंबई। इंडिया में सिर्फ यही इंस्टीट्यूट ऑफर करता है और कोई कोर्स ऑफर नहीं होता एस्ट्रोबायोलॉजी। अमेरिका में अगर आप जाएं, अमेरिका, यूरोप और अदर कंट्रीज में फीस बहुत हाई है, करीब 40 लाख रुपए साल का। दैट इज लाइक 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए लग जाएंगे अगर आपको एक डिग्री लाने में। अमेरिका में अगर आप करते हैं विदाउट स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप मिल जाती है तो देन यू नो हाउ टू डू इट, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं मेनली स्ट्रक्चर्ड कि हाउ यू वांट टू परस्यू एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी में भी काफ़ी काफ़ी सारी डिफरेंट चीज़ें होती हैं। ऑब्जर्वेशनल साइंसेस, थ्योरिस्ट, इंजीनियर इन एस्ट्रोनॉमी। बहुत सारे लोग होते हैं जो इंजीनियर टेलीस्कोप के लिए काम करते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग कर रखी है आपने, ज़रूरी नहीं है कि आप मैथमेटिक्स फिजिक्स पढ़ के एस्ट्रोनॉमी करेंगे, आप इंजीनियर बन जाइए। इंजीनियर बन के भी आप एस्ट्रोनॉमी कर सकते हैं। बहुत बहुत सारे वेज हैं, मतलब मल्टीपल वेज। एस्ट्रोनॉमी की यही खास बात है कि आप कोई भी डिग्री ले लो, ठीक है, फिर आप उसके बाद एस्ट्रोनॉमी कर लो। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है एस्ट्रोनॉमी की, राइट। और फिर हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत सारा देखा है कि हाउ कैन यू डू सिटीजन साइंस। सिटीजन साइंस अगर आपने कभी सुना हो, व्हाट इज सिटीजन साइंस, लाइक आई डोंट हैव अ डिग्री इन दैट साइंस, बट इंटरेस्टिंगली सिटीजन साइंस इज बेसिकली कि कि मैं उस चीज़ में डिग्री नहीं है बट फिर भी मैं उस फील्ड में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, दैट इज नोन एज सिटीजन साइंस। तो वो भी आप कर सकते हैं। सो सिटीजन साइंस के लिए भी बहुत सारे लिंक्स हैं, यू कैन गो एंड सर्च NASA citizen science, so you will get many links कि how you can be a part of a citizen science group। आजकल तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और इन सब पे बहुत सारे फेसबुक ग्रुप्स भी हैं जो सिटीजन साइंस के लिए होते हैं, राइट। तो ये सब चीज़ें आजकल बहुत सिंपल है चीज़ें फाइंड करना, एवरीथिंग यू हैव ऑनलाइन। सो मे बी अगर मैं बोल भी ना पाऊँ, कुछ पॉइंट्स कवर भी ना कर पाऊँ, तो इफ यू सर्च ओवर द इंटरनेट यू विल गेट इट, राइट। दैट्स गुड। अब लेट्स डू वन लास्ट थिंग, वी आर ओपनिंग द चैट, ओके, एंड मेक क्विक ऑल्सो। इसके अपार्ट भी हम लोग काफ़ी सारे लेक्चर्स करते हैं, राइट। अब मेरा जो सेकंड लेक्चर जो हो रहा है वो है हाउ द यूनिवर्स वर्क्स। मैंने अभी एक लिंक डाला है, अगर आप उस पर क्लिक करें तो आप उस विंडो में चले जाएंगे। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ साइन अप करिए, राइट। और गुड बाय टू एवरीवन। आप लोगों से मिलके बात करके बहुत अच्छा लगा, आप लोगों से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला एक्चुअली। तो थैंक यू सो मच, इट वाज वंडरफुल टीचिंग यू गाइस। आई होप आपने कुछ सीखा। नहीं सीखा तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। नहीं सीखा तो इट्स ओके, नॉट अ बिग डील, राइट। सो दिस इज द थिंग, राइट। सो आज क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे क्योंकि मुझे अगले टॉक में जाना है, तो थोड़ा सा मैं लंबा भूल गया, बट इट्स ओके। तो राइट, अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ ईमेल कर दीजिए, और ये जो रिकॉर्डिंग है इसकी ऑलरेडी अपलोड हो जाती है यूट्यूब पे और फेसबुक पे, राइट। अब ये इफ़ यू स्टिल वांट टू बी इन टच, आप लोग हमेशा ईमेल लिख सकते हैं, रिप्लाई टू एवरी ईमेल, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे हैं तो प्लीज़ ये पेज फॉलो करिए, जस्ट होल्ड ऑन। अगर आप नहीं हैं तो कोई बात नहीं। फिडलिंग स्टार्स, राइट, और स्पार्क एस्ट्रोनॉमी ऑफिशियल। अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे हैं तो प्लीज़ फॉलो करिए। अगर आप लोग फेसबुक पे हैं तो देन आप प्लीज़ स्पार्क एस्ट्रोनॉमी फॉलो करिए, राइट। ग्रेट।
चैट बॉक्स में मैंने ऑलरेडी डाल दिया है. Thank you guys. Thank you so much. It was really, really amazing talking to each one of you. And I wish you